بسم الله الرحمن الرحيم. Chapter number 7, Kingdom Protista. And the first question of our exercise is fill in the blanks. So question is, each question has 5 options and circle the correct answer. हमें नीचे 4 से 5 ऑप्शंस दी गई हैं हर एमसीक्यू के नीचे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के नीचे, और उसमें से हमने जो सबसे करीब तरीन या फिर जो करेक्ट आंसर होगा उसको एनसर्कल करना है. सो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स. एमसीक्यू नंबर 1, अमीबाज मूव एंड ऑब्टेन फूड बाय मीन्स ऑफ. तो हमने पढ़ा था इन प्रोटोजोन्स द यूनिसेलुलर एनिमल्स, उसमें जो फर्स्ट हमने उसकी सब क्लास पढ़ी थी, जो फर्स्ट सब डिवीजन पढ़ी थी प्रोटोजोन्स की, दैट वाज अमीबाई. तो अमीबाई के अंदर हमने एक कैरेक्टर पढ़ा था कि उनके अंदर कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद एज दे आर एनिमल्स दे हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो हाउ डू दे मूव? और आपको याद होगा हमने बात की थी कि दे मूव बाय प्रोजेक्टिंग देयर साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस. क्लियर? होपफुली आपको याद आ गया होगा. तो चलते हैं इनके ऑप्शंस की तरफ. Alpha option says plasmodium, beta option says flagella, Charlie option says cilia, delta option says pseudopodia, and epsilon option says gametangia. जी dear students, so what is the correct answer? So hopefully आपने guess कर लिया होगा क्योंकि आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया गया था. The correct answer is delta option, that is pseudopodia, which are the cytoplasmic extensions of the extensions. And why they are called as pseudopodia? Pseudo means false and podia means feet. तो जब वो मूव करते हैं तो अपनी उन प्रोजेक्शंस को आगे की तरफ ऐसे फैलाते हैं. When they stand still, the projections mean the pseudopodia, they go away. Clear? So that is why they are called as pseudopodia. Now, the next MCQ number 2, it says the sexual process exhibited by most ciliates is called. तो ciliates में हमने पढ़ा था, ciliates ऐसे organisms जिनके अंदर जो organ of locomotion है, that is द सीलिया. इसी वजह से हमने उनको सीलियट्स कहा था. और आपको याद होगा इसमें पैरामीशियम और स्टेंटर इनके हवाले से हमने बात की थी. तो वो कौन सा प्रोसेस है जिसके ज़रिए वो ज़्यादातर वो रिप्रोड्यूस करते हैं? तो आपको याद आ गया होगा. सो अल्फा ऑप्शन इज़ oogamie, बीटा ऑप्शन इज़ बाइनरी फिशन, चार्ली ऑप्शन इज़ कॉन्जुगेशन, डेल्टा ऑप्शन इज़ फर्टिलाइजेशन, एंड एप्सिलॉन ऑप्शन इज़ ज़ाइगोट. तो डियर स्टूडेंट्स, यस यू आर राइट. द करेक्ट आंसर इज़ Charlie option, that is conjugation, जिसमें जो सीलिया होते हैं they come across each other, they come close towards each other and exchange their genetic material. MCQ number 3, it says parasitic protozoans that form spores at some stage in their life belong to which group? तो जितने भी हमने प्रोटोजोन्स पढ़े थे, उनके ग्रुप्स पढ़े थे, तो डियर स्टूडेंट्स कौन सा ऐसा ग्रुप था जिसमें स्पोर्स बनते थे? तो आपको याद आ गया होगा, they are the epicomplexans. Clear? So alpha option is ciliates, beta option is actinopods, Charlie option is diatoms, delta option is epicomplexans, and epsilon option is zooflagellates. So hopefully you have understood the correct answer is delta option, that says epicomplexans. उसमें हमने malarial लाइफ साइकिल पढ़ा था, आपको याद है उसमें वो merozoites और sporozoites बनते हैं. These are the spores which are formed in this group. So the correct answer for MCQ number 3 is delta option, that is epicomplexans. Now another MCQ number 4 from our textbook exercise. It says algae which have shells composed of 2 halves that fit together like a petri dish belongs to. तो वो कौन से ऐसे जो algae थे जिसमें उनके जो सेल वॉल होती है उसके 2 पार्ट्स होते हैं और वो एक्जैक्टली इसी तरह से एक दूसरे के ऊपर फिट होता है जैसे पेट्री डिश होती है. क्लियर? सो इसी वजह से तो उनको डायटम भी कहा जा रहा था. सो होपफुली आपको आंसर मिल गया. सो अल्फा ऑप्शन इज ब्राउन algae, बीटा ऑप्शन इज diatoms, Charlie option is euglenoids, delta option is green algae, and epsilon option is red algae. So the correct answer for this MCQ is beta option, that is diatoms. MCQ number 5, it says algae in which body is differentiated into blades, stipes, and the holdfast or the basal holdfast belongs to. तो dear students, हमने एल्जी की मुख्तलिफ तरह की कैटेगरीज पढ़ी थी. उसमें डायाटम्स, उसमें डायनोफ्लैजिलेट्स, उसके अंदर हमने ग्रीन एल्जी, ब्राउन एल्जी, रेड एल्जी. तो किसके अंदर ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद थे? यस यू हैव गेस्ड. सो अल्फा ऑप्शन इज गोल्डन एल्जी, बीटा ऑप्शन इज डायाटम्स, चार्ली ऑप्शन इज कैल्प्स, डेल्टा ऑप्शन इज यूग्लिनॉइड्स, एंड एप्सिलॉन ऑप्शन इज ग्रीन एल्जी. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, फॉर दिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज चार्ली, दैट इज कैल्प्स, द लार्जेस्ट, द जायंट algae. Clear?
जो हमने बात की थी 70 मीटर्स तक इनकी लेंथ हो सकती है। MCQ नंबर 6, इट सेज क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड केराटिनॉइड्स आर फाउंड इन। तो याद करें डियर स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें हमने कहाँ पे पढ़ी थी? तो यूग्लिनॉइड्स के अंदर भी मौजूद थी, ये वाली सारी कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट्स के अंदर भी हैं, उनके अंदर भी ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, और इसके अलावा दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन ग्रीन एल्गी, द एंसेस्टर्स ऑफ प्लांट्स। So alpha option is brown algae, golden algae and diatoms. Beta option is green algae, golden algae and euglenoids. Charlie option is green algae, euglenoids and plants. And delta option is red algae, euglenoids and brown algae. Epsilon option is red algae, golden algae and plants. So dear students, the correct answer for this question, MCQ number 6, is Charlie option. That is green algae, euglenoids and plants. इनके अंदर ये तीनों फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मौजूद होती हैं। और आपको याद होगा, आगे चलकर हम डिटेल से डिस्कस भी करेंगे चैप्टर नंबर 11 के अंदर। द मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज क्लोरोफिल ए, while chlorophyll B and carotenoids, they are the accessory photosynthetic pigments. Now, MCQ number 7, it says the feeding stage of a slime mold is called. तो हमने पढ़ा था ये सेकेंड लास्ट टॉपिक, दैट इज लास्ट एंड उससे पीछे स्लाइम मोल्ड्स और ओमाई वाटर मोल्ड्स, उसमें हमने डिस्कस किया था। इन द स्लाइम मोल्ड्स याद होगा आपको, तो उसमें जो in the feeding stage of slime mold is called, option alpha is mycelium, option beta is pseudopodium, option Charlie is hyphae, option delta is plasmodium, and epsilon is rhizides. So the correct answer for this question is D, or delta option, that is plasmodium. The feeding stage of plasmodium, feeding stage of slime mold is called plasmodium, जो कि एक मल्टी न्यूक्लिएटेड मैस होता है और इसका साइज तकरीबन 30 सेंटीमीटर यानी कि 1 फुट के बराबर। Now the last MCQ, MCQ number 8, it says cell wall in oomic seeds is chemically composed of. तो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद है कि फंजाई लाइक प्रोटिस्ट यानी कि वाटर मोल्ड्स और स्लाइम मोल्ड्स, इनको फंजाई के ग्रुप में से क्यों निकाला गया था? क्योंकि उनमें से सबसे दो मेजर रीजन्स थी, दो मेजर रीजन्स। एक तो फंजाई के अंदर सेंट्रियोल्स नहीं हैं, जबकि फंजाई लाइक प्रोटिस्ट इन दोनों के अंदर मौजूद हैं। दूसरा चीज़ कि इनकी जो सेल वॉल, फंजाई की सेल वॉल काइटिन से बनती है, जबकि इन दोनों के सेल वॉल दैट इज मेड ऑफ सेलुलोज। क्लियर? सो यहाँ पर सेल वॉल के हवाले से ही क्वेश्चन है। ओमाइसीड्स के अंदर या ओमाइकोट्स के अंदर जो सेल वॉल है उसमें कौन सा केमिकल मौजूद है? सो ऑप्शन अल्फा इज सेलुलोज, ऑप्शन बीटा इज काइटिन, option Charlie is proteins, option delta is lignin, and option epsilon is proteins and some carbohydrates. So I have answered already. The correct answer for this question is question number 8, MCQ number 8 is alpha option, that is cellulose. Now, question number 2, the short questions. So write two characteristics of each of the following groups. तो नीचे 5 ग्रुप्स दिए गए हैं, उनके हमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। Clear? So the first one is protozoa. So protozoans, dear students, आपने पढ़ा था, and they are the animal-like protists, and all protozoans are unicellular, clear, and they mostly ingest their food by ingestion like the animals, clear, and they lack cell walls. They lack cell walls. Now, the second one is dinoflagellates. तो dinoflagellates mostly unicellular, और इनके अंदर भी they are often covered by the cells of interlocking cellulose plates, clear, or which are impregnated with silicates. और याद होगा ये unusual ये प्रोटिस्ट हैं, और ये रात के वक्त ग्लिटर करते हैं। आपको वो सारी डिटेल समझाई थी, याद आ गया होगा आपको। क्लियर? सो ये रात के वक्त इनके अंदर वो ल्यूमिनेसेंस मौजूद है, ये रात को चमकते हैं, ऐसा लगता है जैसे समंदर के अंदर तारे उतर आए हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज डाईएटम्स। सो डाईएटम्स, डाई मीन्स टू, तो इनकी जो सेल वॉल है वो दो पार्ट से मिलकर बनी है, और वो इस तरह से बने हुए हैं कि दे फिट टुगेदर जस्ट लाइक अ पेट्री डिश। क्लियर? और डाईएटम्स दे आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम, आपने पढ़ा था। और उसके बाद दूसरे नंबर पर डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं। क्लियर? तो डाइनोफ्लैजिलेट्स में आप ये भी लिख सकते हैं कि दे आर द प्रोड्यूसर्स सेकेंड आफ्टर the diatoms, and because diatoms they are at the top list. Fourth one is slime molds. तो slime molds they उनकी जो feeding stage है उसको क्या कहते हैं? Plasmodium. It is a multinucleated mass, और इसका साइज कितना होता है? तकरीबन 1 फुट के बराबर यानी कि 30 सेंटीमीटर। और इसके अंदर they ingest the dead organic matter whatever it is coming in their way when they are creeping, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे होते हैं। They form that network of channels. Clear? So that is the slime molds. Now the oomicotes और oomicetes जिनको कहते हैं, या इनको वाटर मोल्ड्स कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स,
यानी कि जो सेल वॉल है दैट इज मेड ऑफ सेलुलोज नॉट काइटिन नंबर 1, और ये दे शो वेरी क्लोज रिलेशनशिप टू द ट्रू फंजाई। लेकिन जो ये बेसिक डिफरेंस है कि जो ट्रू फंजाई है उनके अंदर सेलुलोज नहीं बल्कि काइटिन है, इनके अंदर एक तो ये डिफरेंस आ गया इन दिस ग्रुप ओमाइसीड्स, और दूसरा कि इनके अंदर वो सेंट्रियोल्स का डिफरेंस आ गया। इसी वजह से एवोल्यूशनरी कंसेप्ट के हिसाब से वो ये कहते हैं कि ये ज़्यादा करीब हैं ओमाइसीड्स या ओमाइकोट्स और वाटर बोल्ट्स।